اسے ذہن میں رکھو، اگر نواب کا آخری بیٹا ہوں۔ مزید دنیا پور میں آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ حالی دھمکیاں گھر میں دے، میں بالکل جانتا ہوں کہ آپ کی کیا قیمت ہے۔ ارے آرام کرو ماسٹر، ابھی نہیں، وہ آ رہی ہے، اسے مرتے وقت مزہ آئے گا۔ ابھی شمیر بائک ریس کا حصہ ہے، اسے چاٹ لو، آدمی بنو ایک آدمی۔ تم تو شرط لگائی تھی، ٹھیک ہے، اب اسی پر عمل کرو، ورنہ گھر جا کر اپنی عورت کو حفاظت میں بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے نوروز آدم کا بیٹا، بزدل ہے، اسے چاٹ جانے دو۔ مبارک ہو نواب صاحب، آج ایک بار پھر آدم اور کا حق چٹانی پڑی۔ یہ وہ بھی نہیں ہے جس سے آپ کسی کو مٹی کھانے پر مجبور کرتے ہیں، یہ وہی ہے جو واقعی مٹی کھاتا ہے اتنے عرصے سے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ہم سے ساری دنیا پرچی لیا۔ اگر آج نواب صاحب حکم دے تو کل تک یہاں سب کچھ کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ آپ سے پہلے باقی 3 بیٹے بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ان کی تصویر دیوار پر لگی ہوئی ہے، یہ مردوں کو معلوم ہے، آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہے، میں پہلے ہی 3 بیٹے کھو چکا ہوں، میں چوتھا نہیں ہار سکتا۔ ہمیں بھی موقع ملے گا۔ نواب صاحب، اگر آپ اپنے تینوں بیٹوں کو جان بچائی ہے تو ان کو مرنے کے بعد آپ 3 شادیاں نہیں کرتے تو موقع دستک نہیں دیتا۔ آپ کو اسے بنانا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو ان حالات میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے، یہ اتنا برا نہیں ہے، یہ میری انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں، مجھے یہاں گھٹن محسوس ہوتی ہے، اگر میں کر سکتا ہوں تو میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ سب جانور ہیں، جنگلی ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ بھائی نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، اسے اچھی طرح سے ڈالا ہے، تمہارا سارا اس کو ڈال دو، اگر یہ نہ نکلے تو چھوڑ دو۔ اللہ آپ کو بلا رہی ہے نیورا، ماما مجھے بلا رہی ہے، بھائی کو چوٹ لگی ہے، مجھے دے دو، میں کر دوں گا، تم جاؤ، دیکھو وہ شاید اس کو کچھ ضرورت ہو، ٹھیک ہے، جلدی آؤ۔ ہوشیار، میں نے سنا ہے کہ تم ریس ہار گئے ہو۔ میں راستے میں ایک بچہ میری موٹر سائیکل پھسل گئی ہے، ورنہ مجھے ہارنے کا کوئی شوق نہیں۔ مجھے آپ کو ہارتے ہوئے دیکھنا بالکل پسند نہیں ہے۔ کیا آپ پسند ناپسند کی خاطر مجھے بچے کی جان لینی چاہیے تھی؟ ایک ہاتھ سے کرو، یہ کوئی بری بات نہیں، مجھے تمہارے لیے ساری دنیا کی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں تو تم سے کتنی بار کہا ہے مجھ سے بکواس مت کرو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ آئندہ محتاط رہیں، چھوڑ دو۔ تم کب آئے؟ ابھی کچھ ہوا میرے پیٹ کو؟ یہ آپ اپنے جھگڑے میں بہت مصروف تھے، مجھے دوبارہ مسترد کر دیا گیا۔ پہلے میری بات سنو، دیکھو اتنے انا بچے، جو کچھ بھی ہوتا ہے بہترین کے لیے ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ آگے کیا کہو گے، جو بھی ہوتا ہے بہترین کے لیے ہوتا ہے، اگلی بار دوبارہ کوشش کریں، آپ دیکھیں گے اس بار آپ کو ویزا ضرور ملے گا۔ یہ کیسی زندگی ہے بھائی؟ آپ کا کیا مطلب ہے کیسی زندگی ہے؟ زندگی اچھی ہے۔ یہ کیسے اچھا ہے؟ آپ کہیں باہر نہیں جا سکتے تو جاؤ، پوری فوج ساتھ لے جاؤ، ہم ہر شخص دوسرے، ہمارا خون کا پیاسا ہے، باہر سے کہیں زیادہ اندر سے دم گھٹ رہا ہے۔ میں دنیا پور سے نکلنا چاہتا ہوں، میں بہت دور جانا چاہتا ہوں، یہاں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اپنا ویزا مل گیا ہے بچے، آپ کو اپنا ویزا مل گیا ہے، آپ کے پاس بس آج رات ہے، کل آپ کھلی ہوا میں سانس لیں گی۔ اس کے ساتھ کون ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، ہاں، ایم این اے آپ سے کسی کا تعارف کروانا چاہتا ہے۔ میں انہیں کیا وقت دوں؟ کل شام ان کو بلاؤ، ٹھیک ہے، ضرور۔ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں صاحب کے ساتھ تمہارا رویہ تھوڑا سخت ہے، وہ
हमारे बड़े बेटा है, आखिरकार उसका फ्यूचर में सब कुछ संभालेगा। उस पर थोड़ा भरोसा करें। आपके बच्चे को उड़ती पतंग की दौड़ पकड़ाने दे सकते हैं, लेकिन आपको हमारे हाथ में रखनी होगी रील, वरना जब तारा टूट जाता है तो आप बाकी बच्चे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तुम ठीक कहते हो, आप बेहतर जानते हो कि मैं आज यहाँ हूँ, वरना मैं आज तक नवाब का नौकर होता। वक्त आने पर बच्चे को सब कुछ दूंगा। साहब, शमीर का ध्यान दुनियापुर की तरफ नहीं है, उसकी सोच कहीं और है। सोचने की बात क्या है, हालात खुद ही सब कुछ बदल देते हैं। वो बच्चा है, एक बार जब जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ जाएंगी तो वो संभालना सीख लेगा। वो कहाँ है? वो अंदर है। वो मोटरसाइकिल से फिसल गया है, वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। अगर आप चाहें तो मैं उसे बुलाऊं? नहीं, मैं खुद उससे मिलूंगा। बड़ों की अकल छोटी होती है, शायद छोटा ज़रा समझदार हो जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा। मैं किस किस्म का मजाक है? सब कुछ मजाक लगता है। एक दिन मैं आपको मेरे बारे में सब कुछ मजाक लगता है। एक दिन मेरी शादी किसी और से हो जाएगी, तुम्हें उस मजाक समझो। अपने आवाज़ नीचे करो, कोई तुम्हें सुन लेगा। अगर नहीं सुनना पड़े तो मुझसे सुन सकता है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। आप नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। पापा मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतनी ही डरती हो तो मोहब्बत क्यों होगी? मैं उसमें पड़ने से पहले नहीं जानता था। अब मुझे लगता है कि ये बेहतर होता कि मोहब्बत में ना पड़ जाता। अशायर तो बदमाश है, मैं कल से डील करूँगा। वक्त पर पहुँचे, मैं खुद एक बहाना बनाऊँगी। कहाँ जा रहे हो? मुझे साहब के कमरे की लाइट ठीक करनी है। मैं ऐसे किसी से करवा दूँगा, तुम घर जाओ। मैं आपसे बाद में आकर बात करूँगा। ठीक है। आप इतनी बुरी तरह जख्मी नहीं हुए। नवाब के बेटे को बिला वजह खुश होने का मौका मिल गया। दादी, ये सब कब खत्म होगा? इतनी जानें गई, इतने लोग मर गए, ये सब अब खत्म हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, नवाबों के तमाम बेटे मार डाले हैं, बस फरबेद रह गया है। दुनियापुर का कंट्रोल हमारे पास है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ रह जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए। सिर्फ एक अहमक शख्स को जिंदा छोड़ दो जब वो मौत के करीब होता है, क्योंकि अगर मौका दिया गया तो आप सबको नहीं छोड़ेगा। बैठो, दुनियापुर पर हुकूमत करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है अगर नवाब हुकूमत करे? ये एक आपकी दादी के लिए सबसे अहमियत रखता है। अगर वो उन्हें माफ़ कर दे तो मैं दुनियापुर को उनके कदमों में रहकर उसका इंतज़ार करवाऊंगी। उससे पूछो, क्या वो उन्हें माफ़ कर देगा? आप गलतियों को माफ़ कर देते हैं, तुम गुनाह की सज़ा देते हो। मुझे मौका मिला तो मैंने नवाबों के तीनों बेटे कत्ल कर दिए। अगर ऐसा मौका मिला तो वो मेरा ख़ानदान ख़त्म कर देगा। आप कभी नहीं जानते कि अगला मौका किसको मिलेगा, कब मिलेगा। बस उसको तैयार रहना होगा। ठीक भाईजान, आपका ख्याल अच्छा है, लेकिन उसके लिए बराबरी ज़रूरी है। शेरों और कुत्तों में भाईचारा नहीं हो सकता। समझ के? जी हाँ। जरा आप यकीन करो, मुझसे गलती हुई है। मुझे याद नहीं था कि मेरे पास बाकी रकम नहीं थी। 1 घंटा मुझे यहाँ आपकी जगह किसी और को हटाने में सिर्फ 1 घंटा लग जाता है। ये असला है, सोना है, चावल है, मसाला है, सब कुछ कारोबार हमारा है। अगर मैं 1300 से हाथ हटा दिया 1300 से हाथ उठा दिया, दुनियापुर से बाहर चावल का दाना भी नहीं लिए जा सकते। जनाब,
अपने जूते उतार कर मेरे सर पर मारो, लेकिन यकीन करें मुझसे गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दो, उसे माफ़ कर दें, वो हमारा आदमी है। लाला नायाब की वो रेफर ला कर दिखाओ जो तुमने पुराने मुल्क से मंगवाई थी। हाँ बस मैं ले आऊँगा, मैं लाला से बात करूँगा, आपको सजाने दो, ये सिर्फ आपके लिए है। वैसे साहिब ठीक कहता है कि उसे आपकी ज़रूरत है, ये सिर्फ आपके लिए है। वैसे साहब ठीक कहते हैं कि आपकी ज़रूरत है, आपको यहाँ से भागना है। मैं भाग नहीं सकता भाई, आपको ज़्यादा मालूम होगा, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये दुनिया इतनी तेज़ रेत है कि मैं इसमें कितनी ही कोशिश कर लूँ मैं मज़ीद डूब जाता हूँ। फिर क्या ये बेहतर नहीं कि आप यहाँ फंस गए हैं, वहाँ रुक जाएं, अब बाहर नहीं निकल सकते, कम से कम मज़ीद डूब नहीं जाएंगे। नहीं यार, ये ट्रक अंदर क्यों आया है? वो कौन है? ये साहब का मेहमान है। वो साहब के मेहमान हैं तो वो कौन है? वो दुनिया SHO है, मैं इस दुनिया भर के इर्द गिर्द ले जा रहा था। आपके दिमाग से बाहर है, नीचे आओ, एहतियात से होशियार। मास्टर नायाब ने मुझे बताया कि आप अपने दिमाग से बाहर हैं, उसे छोड़ दो। जी हाँ, कब कैसे वहीं खड़े रहो। शमशेर भाई मुझे चाबियाँ दो। क्या हुआ? मुझे चाबियाँ दो। भाई क्या हुआ है? अरे ये ठीक नहीं है, मेरी बात सुनो, क्या हुआ है? ये किसने कहा है मुंतकिल किया है? ये क्या हुआ यार, क्या हुआ? मुझे कुछ पता चलेगा, ये गलत है, आप ठीक नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो भाई, गार्ड्स की गाड़ी में बैठो। ओके भाई ये बात सुनो, ये शमीर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। गार्ड ठंडे दिमाग रखें, रुको, ठंडा दिमाग रखो, कुछ नहीं होगा। शमीर चलो, हम अपने नवाबों के साथ अमन में हैं। छोड़ दो नवाब, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे लड़ने दो, मैं आज नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़रूरत नहीं है, ये काम नवाबों ने किया हुआ है, ये काम कोई और कर सकता है, या किसी और की साजिश भी हो सकती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हम पे हमला करे, ये किसी की साजिश हो सकती है, किसी की। ठीक कह रहा है, ये वक्त नहीं है, आप नवाबों पर हमला करने नहीं जा सकते, हमें उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात सुनो, ये मत करो, इधर आओ। शमीर छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, भाई रुक जाओ, सब मारे जाएंगे, प्लीज़ गाड़ी रोको। तो हमें इस जिल्लत के साथ जीना क्या है? जज्बाती फैसला ना करो, क्या कर रहे हो? साहब से बात करो, उसके बाद वापस आने के बाद क्या करेंगे? शमीर मुझे फ़ोन दो। भाई मेरी बात सुनो, हम ज़िंदा रहेंगे तो वापस आएंगे ना, हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। शमीर गाड़ी इधर ही रोक दो, वरना हम सब मारे जाएंगे, कोई भी मारा नहीं जाएगा। मैंने कहा था कि एक दिन हमें मौका मिलेगा, मौका यहाँ है, हम सिर्फ उसे ज़िंदा पकड़ना चाहते हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर हैं। मेरा बेटा कहाँ है? हमने शमीर को जख्मी हालत में पाया है, उसका हॉस्पिटल ले गए हैं। वो और नायाब जिंदा है, लेकिन वो आपू की कैद में है। छोड़ो, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो कैसा है? तुम्हारे अंदर तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो नूर आदम है, देखो जो भी है उसे अभी बाहर ले जाओ। सुनो साहब, ये कह रहे हैं, देखो वो पूरी तरह जख्मी है, उससे बहुत जख्म आए हैं। ठीक है शमीर, ठीक हो जाएगा ना? हाँ, अगर आप लोग हमें उसे ठीक करने दें तो हम अपना अपना काम करेंगे। सब लोग बाहर जाओ। नवाबों ने नायाब को जिंदा पकड़ लिया है। क्या नायाब जिंदा है? जी हाँ। शमीर वो भी बच गया है, लेकिन वो जख्मी है। अच्छा काम, इस हालत में खतरे से बाहर है, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगा।
अरे नहीं, उससे कोई ज़रूरत नहीं है साहब, दे रहे हैं, रख लो। अगर आज आखिरी दिन है तो ऐसे ही है। मेरे दो पोते फौत हो चुके हैं, मुझे नवाब की लाश चाहिए, मैं तैयार हूँ मामू। कोई और अवसर रास्ता होना चाहिए। तो वो दो बेटे पहले ही फौत हो चुके हैं, मैं तुम्हें मुर्दा चेहरा नहीं दे सकता। हाँ, वहाँ ज़रूर है। नवाबों को मारना और मारने की बजाय ये तरीका कि हम यहीं बैठे रहें। नवाबों को मारने की बजाय ये तरीका कि नवाब आकर हमें मार डालते हैं। देखो, कुछ दिन के लिए सब कुछ भूल जाओ। हालत उससे आगे बढ़ चुकी है। जो हम जो हमने सोचा था, हो सकता है साहब के दोनों बेटे मर चुके हों। साहब इस वक्त जख्मी शेर की तरह है, वो किसी भी वक्त नवाब पर हमला कर देगा। ये बात है, उन्हें दो, उसके बाद बात करेंगे। जो कुछ मर्जी में है, अब हालत बदल चुकी है, हमें उसके मुताबिक फैसला करना होगा। दोबारा कॉल ना करें। साहब को इशारा भी मिला तो हम सब मारे जाएंगे। मैं ठीक हूँ, गोली सब मुझे चुभ रही है। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी सियासत दुनिया भर की कोई भी जगह तुम्हें मेरी ज़िंदगी में सिर्फ शमीर है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। हमें आप पर गिरफ्त हासिल करो। एक लड़की इस वक्त दुनिया पर कंट्रोल साहब के हाथों से निकल कर किसी भी वक्त नवाबों के हाथ में आ सकता है। अगर तकदीर अच्छी रही तो शायद ऐसा ना हो पाए। नवाबों को मारना और मारना ही आखिर में वही रहेगा जो खड़ा रहेगा। तो मैं उनको तुम्हें कोई फ़र्क नहीं है आपकी तरह। वो जो वाकई जब वो वाकई भोगना होते हैं तो वो अपने मालिक को फाड़ सकते हैं। ये सब बेकार है। ये कोशिश है, सौदा है। इससे बजाय मैं वफादार कुत्ते रखता हूँ जो पागल हो जाते हैं। वो भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं सकते। आपकी बाकी ज़िंदगी यहाँ गुजर जाएगी। तुम मेरे हाथों एक बार खो दो, मैं तुम्हें दुनिया के लिए काफ़ी हो जाऊँ। मेरे हाथ खोल दो। अभी मर्दों पर भरोसा करते हो, अगर तुम मर्द हो तो आओ मुझसे लड़ो। मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। मेरा सर फहद से बुलंद हो गया कि बेटा मारा गया और दूसरा हमारी कैद में है। आदम के बेटे भी नवाबों की बेटों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने उसे किसके मुकाबला नहीं मारा। अगर वो मर गया है तो मुझे अफसोस है। मैंने अपने को बचाने के लिए किया। देखते हैं लड़की अपने वालिदैन के सामने कैसी बात कर रही हो। उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो मेरे वालिदा को बहुत हुए काफ़ी अर्सा हो गया है। मुझे दूसरी माँ की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा नवाब साहब, ये लड़की कैसे जगा रही है। ये मेरा फ़ोन है। यकीन ये जज्बा दिखाएगी। हम आगे कर कुछ भी नहीं। आदम अभी ज़िंदा है, उससे पहले वो कुछ करे हमें उस पर हमला करना चाहिए। आदम के साथ रहकर तुम भी उस जैसे सोचने लग पड़े हो। हर ख्याल को अपने दिमाग पर वजन न होने दो। उसके अलावा आज की रात हमारी फतेह की रात है। जाओ जश्न मनाओ। मैं देखूंगा कि हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है। क्या आप नाराज़ हैं इंतहाई? हम सुबह भी पैकिंग कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, कल जा रहे हैं। हालात अच्छे नहीं हैं। आपको अभी घर से निकलना ठीक नहीं है। तुम अपने घर से इतनी नफरत करते हो, घर जाओ। मुझे हर एक चीज़ से नफरत है। मैं भी उन सब चीज़ों के साथ यहाँ रहता हूँ। अब दुनिया पर हुकूमत करनी है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उम्मीद है वो लड़का बच गया है, वरना मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा ये सोच कर कि मैंने एक इंसान का कत्ल किया है। आपने कोई गुनाह नहीं किया। अगर तुमने उसे कत्ल ना किया होता तो वो जानता है, बचपन से ही सुनता रहा है, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो हमें मार देंगे। ये कहो कि तीनों भाई दुनिया से चले गए, मैं चौथे के मरते नहीं दे सकूँगा।
ہم اسے نہیں دیکھیں گے، کل صبح تم یہاں سے ہر حال میں چلے جاؤ، اپنا رونا اب رونا مت، اپنے آنسو پہنچو، تم پھر رو رہی ہو، مجھے دیکھو آپ کیسے ہنستے ہیں، مجھے دکھاؤ آپ کس طرح ہنستے ہیں، صاحب نایاب اور شمیر زندہ ہیں، میرے بیٹے کہاں ہیں، ہم نے شمیر کو زخمی حالت میں پایا ہے۔ وہ کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ بچ جائے گا۔ مزید ڈراموں کے اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔